I know they don't do much and they don't say a lot, but they look great. Though the boys So how these dolls are made, no? population 1.3 billion. Here in Iwu, the last 30 years have seen a huge increase in the economy with production of one of their biggest exports, toys. This factory in Iwu makes Lucy dolls. They're made out of a polyethylene plastic, similar to the material that's used to make plastic carrier bags. This type of plastic is cheap, flexible and fire retardant, and they use 500,000 tons of it to make 5 million dolls a year. The plastic is melted down into a liquid form at 150 degrees Celsius. Then it flows into these doll molds. ये ढांचा है, दिखा क्या आपको? हाँ सर। Yes, sir. इस ढांचे का शेप ले लेता है वो. One side of the machine is the head, torso and arms, the other the backside and legs. All of the doll pieces get joined by hand. This guy is the Lucy Doll champion, putting together a staggering 10,000 dolls every day. रोज 10,000. The faces are painted using a lead-free oil-based paint. Each stage of Lucy's makeup is done separately. The heads are then stored in a bucket where a light bulb keeps them warm and softens the plastic, making it easier to sew the hair on. The hair is made from polymer nylon, and a team of hairdressers makes sure Lucy looks her best by giving her a full-on haircut and style. सब प्लास्टिक से बनाते हैं. The dolls' dresses are made out of a variety of different materials, and the patterns are pressed out in bulk. The complex designs are sewn together by a team of expert seamstresses. After being dressed, Lucy goes through quality control, and then she's ready for her big date with Richard. Ding dong. Understood? Yes, yes. Yes, sir. That is how it's ढांचा. है ना, तो ढांचे में जहाँ पर वो ये कर रहे था, तो जिस भी शेप में डाल दिया उसका शेप ले लेता है. Sir, That's why children should not use this plastic, all these toys. This is very harmful for them. Correct? यस सर वैसा मेल्ट जब वो ढांचे में स्टोर हो रहा था तो वो कैसे ऐसा अजीब दिख रहा था, किसके? ऐसा एकदम रबरी टाइप. जब वो ढांचे में डाल रहे थे तब वैसे रबर या च्युइंगम जैसा होता है वैसा दिख रहा था, इसलिए वो हाँ, दिखने में दिख सकता है, but not a problem. Plastic is there. च्युइंगम भी रबरी होता है, मतलब प्लास्टिक रबरी होता है. हाँ, रबरी होता है. प्लास्टिक का रबर होता है. रबर नहीं नहीं, च्युइंगम सिंथेटिक से ही बनाते हैं ना. क्या क्या क्या? च्युइंगम होता है ना, वो सिंथेटिक मटेरियल से ही बनाते हैं. हाँ, वो बना देना. Made from that only. Sir, हाँ. सर एक्चुअली पहले है ना वो जो कैंडी होती है ना, कॉटन कैंडी, वो मुझे पहले लगता था कि कॉटन कैंडी कॉटन से ही बनती है. तो फिर मुझे बाद में उसका आंसर ही पता नहीं चला. सर वो कैंडी कौन सी बनती है? उसको हिंदी में हम बुड्ढी की बाल भी कहते हैं. क्या बोलते हैं उसको? बुड्ढे के बाल होते हैं. बुड्ढी के बाल. हाँ. मुझे भी नहीं पता किससे बनता है कभी, मतलब क्या बोले उसको? कॉटन कैंडी. शुगर से बनता है वो. शुगर से बनता है. शुगर. वो एक्चुअली शुगर से बनाते हैं उसे, और फिर कलर ऐड करते हैं और फिर वो पिंक कलर आता है. एडिबल कलर्स ऐड करते हैं शुगर के साथ. तो सर फेरी फ्लॉस है क्या? फेरी फ्लॉस. अरे वो शुगर से बनता है वो. हाँ सर, मैंने देखा है उनको बनाते तो हुए. सर वो सॉफ्ट कैसे हो जाता है? सर मैंने भी देखा है. सॉफ्ट कैसे हो जाता है? उसको नहीं, बीट करते अरे हैं ना. उसमें क्या करते हैं, ऐसे कुछ तो वो पानी में डालते हैं, मतलब ऐसे उसे बॉईल कैसे, कुछ तो
ऐसे रोल रोल करते 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 वो ऐसे बड़ा बनता हाँ है. राइट Thank करेक्ट. दैट्स हाउ इट्स मेड. तो शक्कर को बहुत बार घुमाते हैं उसको सॉफ्ट करके, और वेरी वेरी थिन strands are there. That's why it appears like that. Okay, that's how cotton candy is made. Very very thin. Especially for children, it's very very attractive. Everything is whole thing is sugar. Yes. Whole thing is just the sugar, like that. Okay, got it. Yes, sir. Clear. Thank Yeah. This will make you more clear. ये खत्म हो गया है. इसमें तो रीड कीजिए सर, आप रीड कीजिए ना, वो रीड का बटन क्या है ये? और हेलो हेलो सर. हेलो दिख रहा सर. है अभी? सर दिख रहा है. यस सर दिख रहा है. Okay. Sorry, it was not opening. Wrapped. I'm Mark Summers, and today we're strolling down the boardwalk
discovering secrets behind classic summertime sweets. And our first stop is a real classic, first appearing in 1900 at the Ringling Brothers Circus. It's right here. It's क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? सर आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। सर नहीं तो कोई और दिखा सकता है आप। When it comes to candy, शेयर स्क्रीन करने की परमिशन दो तो कोई और दिखा सकता है। मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा। नेट अच्छा हो। आवाज नहीं आ रहा है आपका। सर आपका और वीडियो का आवाज ब्रेक हो रहा है। नहीं सर नहीं। रुको रुको अभी आ रहा है क्या? there's nothing else like it. Today it's called cotton candy, but these airy strands of spun sugar are so light they were once called fairy floss. America was introduced nationally to this sweet stuff in 1893 at the World's Fair in Chicago. It soon became a popular treat at other fairs, carnivals, and of course, along the boardwalk. Cotton candy became a summertime staple, but finding it at any Now it's coming properly. Yes, sir. Yes. Okay. other time of the year सर आवाज was ब्रेक हो गया अभी। nearly मतलब impossible. वो आवाज आ नहीं But रहा। in 1985, cotton candy took a big hop forward with the invention. सर लेकिन उस कॉटन कैंडी से दांत भी खराब हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत टेस्टी रहते हैं। सो लेकिन खाने आवाज कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। Of fluffy stuff. सर बट Specially designed bags. अरे बट वंस इन अ व्हाइल क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। ये देखो आप पहले वीडियो। Anytime. And this was very important because by putting cotton candy into bags, it had a much longer shelf life. At their factory in Covington, Tennessee, Charms makes millions of lollipops सर every मैंने एक day. वीडियो में उसका एक्सपेरिमेंट देखा था कि अगर हम Outdoors कॉटन is an कैंडी area को to पानी में डाल दे तो वो वहां से मेल्ट हो जाता है। हाँ राइट। वाटर ओके कांटेक्ट में आके फर्स्ट वो मेल्ट होता है इसलिए। ओके ओके फर्स्ट विल सी द सर वो वीडियो। शुगर का है, शुगर हाँ क्योंकि डिसॉल्व होता है ना। हाँ राइट। अरे पहले वीडियो देखो बाद में बोलो। ठीक है एक मिनट रुको अभी। Cured for fluffy stuff. Our process is indeed beyond state of the art and is in fact a secret process. For the first time ever, they're allowing cameras to show some of the amazing technology that brings fluffy stuff to the store. It starts with the main ingredient, which is a special type of sugar called sanding sugar. Its larger granules make for कलर fluffier मिला stuff. देते हैं। If you try to use regular sugar and make cotton candy, it tastes gritty or grainy. 600 pounds of the sweet stuff empties into a blending machine, and small amounts of flavor and color add to the batch. After mixing for several minutes, the strawberry-flavored sugar is emptied into a vat. Next, workers measure the mix into buckets and then fill hoppers at the top of giant spinning machines. And a spinning machine consists of a large tub that rotates with an inner spinner, which is a small hopper that circulates at high RPM, and inside that you have industrial type heaters located that actually heat बापरे। crystals to the extent where they melt, and that'll be way over 300 degrees Fahrenheit. The melted sugar forces out of tiny holes in the screen, creating strands of floss that collect along the sides. Then the cotton candy is formed into what's called pillows and moved to bagging in a top secret process. And we're using a lamination with a metallized film that is extremely airtight and gives us shelf lives in excess of a year. Which means cotton candy can be enjoyed anytime, anywhere. You don't have to wait to have it at the carnival in warm weather, but you can eat it in the winter time when you're watching a film because it does have moisture and air protection.
हाँ सर लेकिन वो बहुत टेस्टी दिख रहा था उसमें, जब वो जैसे पिंक कलर का स्ट्रॉबेरी गिर रहा था तो। अभी अपना टेस्ट वापस लेके आओ। तो हमने देखा था प्लास्टिक दो टाइप के हो सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक जो कि अपना शेप चेंज कर सकते हैं ना, विच कैन बी डिफॉर्म वेरी इजीली। थर्मोसेटिंग है जिसको कि एक बार शेप आ गया, शेप ले लिया उसने, तो उसी शेप में रहते हैं, करेक्ट ना? इट डज नॉट चेंज इट्स शेप, राइट? दैट्स व्हाट मीन्स थर्मोसेटिंग मतलब ढांचे में डाल दिया तो ढांचे, जैसे वो डॉल था ना, डॉल का शेप चेंज नहीं कर सकते आप, करेक्ट? देयर आर सम प्लास्टिक्स विच यू कैन चेंज, राइट? उसको ये कर दिया था आपने, वो चेंज कर सकते हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट ना? मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग मतलब याद रहे, एक बार सेट हो जाते हैं वो, करेक्ट? एक बार सेट हो गए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इनका, बार बार उसको ये तकलीफ नहीं देता है। फिर दो एग्जांपल क्या है इसके, बेकलाइट एंड मेलामाइन आर द टू एग्जांपल्स ऑफ दिस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, करेक्ट ना? Last time we had seen something about bakelite. No sir, no, आपने सर बिलीफ एक्सप्लेन किया था कि ऐसा ऐसा होता है, पर आपने सिखा नहीं था आपने। हाँ, right. So bakelite, you can write down this topic now. This bakelite is what? It's a poor conductor of heat and it's used for making electrical switches, handles and various utensils. Correct. तो bakelite भी क्या है? bakelite thermosetting है ना? इलेक्ट्रिकल स्विचेस का आप शेप चेंज कर सकते हो आप बाद में? नहीं सर। You cannot change, correct? Change its shape, correct? राइट? एक बार जो उसने शेप ले लिया तो वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल स्विचेस, करेक्ट ना? हाँ सर। तो बीच में वो ऐड आता देखो, जिसमें वो शॉक लग गया तो उसका बाल खड़ा हो जाता था, है ना? राइट? ओके। हाँ सर। सर हो गया लिखा। Clear? So you have their switches and switches are right, it's very used everywhere, है ना? हर जगह उसका इस्तेमाल होता है switches का, right? So it's very important to know that कि ये जो switches है वो आते कहाँ से? Right? They are made of plastics, right? Every one of us know they are made up of plastics, correct? Okay. ठीक है, तो गड़बड़ वीडियो लग रहा है ये तो। सर बोलो। सर स्विचेस कैसे बनते हैं? वही दिखा रहा हूँ आपको। These plates are for switches that will be installed in hotel rooms, and they will include sockets for 3-pin British plugs. The automated tooling wraps the punched metal around a form to give it the desired shape. This framework will also serve as an electrical grounding plate, discharging electrical energy from the socket to prevent shocks. A worker now attaches a molded plastic part to a grounding plate. He inserts a screw in a brass connector and installs it in a slot in the molded plastic. He installs a series of brass terminals.
At the next station, a worker assembles fuse holders, contacts, and springs to the plastic structure. Next up are little spring-operated plastic shutters. They block the sockets when nothing is plugged into them. Moving down the assembly line, a worker inserts springs into twin rocker switches. She lowers a press to squeeze all the switch components together, then transfers the switches to the electrical unit. Another technician snaps a cover onto it. He plugs it into a light box to test it, and the bulbs of the box illuminate. This confirms that the switches and sockets are fully operational. A worker now fits the steel grid plate to it, with the switches and sockets protruding through it. This particular unit is also equipped with a round European plug and a USB charging port for mobile devices. At the next station, an operator serves up brass faceplates to a press that bends the rims, forming a thin lip that will fit around the grid plate. A computerized welder fuses studs to the back of the faceplates, placing one at each corner. These studs will fix the faceplate to the grid plate and provide a screwless finish on the front. When it comes to switch and socket combinations, there's no shortage of options. At this station, a worker assembles a particularly large one with switches, charging ports, and sockets. It's also designed for installation in a hotel room. He secures the charging port to the grid plate, and it's ready for the faceplate. He attaches it using the welded studs, and with the folded edging, it encases the grid plate neatly. Okay. Yes, sir. तो ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीजें बन सकती है ना. तो बेसिकली ढांचे में उसको डाल दो. ये बेकलाइट का था लेकिन जो निकल गया उसमें. बट या यू कैन मेक योर हैंडल्स ऑफ योर वेसल्स, करेक्ट ना. जैसे आपका कुछ किचन में आप इस्तेमाल करते हो, राइट. सम क्रॉकरी यूज, जैसे कुछ मग्स रहता है, सम मग्स आर मेड ऑफ बेकलाइट. एक बार नीचे गिर गया तो टूट जाता है वो, करेक्ट. इट इज ना, इट कैन नॉट अगेन बी रिमोल्डेड, राइट. एंड यू कैन यूज इट फॉर योर, करेक्ट. किचन में आप इस्तेमाल कर सकते हो. वो आपका तवा रहता है, तवे के हैंडल में लगा सकते हो. तो क्योंकि ये अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो लगा सकते हो. व्हिच इज हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, हैंडल की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हो. ओके, सो लाइक दैट. So that is your bakelite. And melamine is what? It's a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. मतलब हीट टॉलरेट कर सकता है, इसलिए कप की तरह इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर कब्बशी दिख रहा है आपको, कब्बशी. Used for making floor tiles, kitchenware and fabrics which resist fire. करेक्ट ना. तो मेलामाइन किसके लिए अच्छा है? ये फायर को अच्छे से पकड़ के बैठ रहा है वो, करेक्ट. फायर को अच्छे से पकड़ के बैठ रहे हैं, ठीक है. समझ में आई मेरी बात. तो इसलिए मेनी टाइम्स यू सी कब्बशी और ये सब चीजों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इट कैन टॉलरेट हीट वेरी वेरी नाइसली, करेक्ट. सो दैट्स द मेन रीजन फॉर दैट, करेक्ट. Getting my point? Yes, sir. Yes, sir. You know, so melamine is a very important ingredient, right? It's सर ये kitchen टेक्स्ट बुक में लिखा है कि वो अनब्रेकेबल है, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि मतलब मेरे हाथ से भी 2-3 बार फूटा है ऐसा. तो पीसेस होते हैं वैसे इसी मटेरियल के. हाँ, हो सकता है.
Unbreakable मतलब used to manufacture unbreakable crockery. That is all right. Unbreakable मतलब जिसको तोड़ नहीं सकते, बट कौन सा चीज है जो टूटता नहीं है बेटा? बच्चों बताओ। सर नायलॉन का धागा थोड़ी टूटता है। Sometime later it will tear out, wear out. Correct ना? हाँ सर। Yes, sir. तो कुछ भी चीज समय हो गया तो वो चले जाता है, उसका काम हो जाता है उसका, है ना? Like that it happens, right? Ceramic. Sir, बोलो। सर यहाँ लिखा है कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग किचनवेयर एंड फैब्रिक्स। सर मतलब फैब्रिक्स मतलब कौन से? सर कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ फैब्रिक्स? हाँ सर, मतलब जिसमें ये मेलामाइन यूज होता है। फैब्रिक कहाँ का इस्तेमाल? मेलामाइन फैब्रिक मतलब मेलामाइन प्लास्टिक है, मतलब वो फैब्रिक्स मतलब हाँ वो सिर्फ फाइबर फाइबर से कोट में उसका एक लेयर होता है मेलामाइन का। हेलो सर। बोलो। ओके, ये किसी ने तो गाने लगाया है पीछे। मैं चेक कर रहा हूँ, वीडियो आपको दिखाना था। This is how this melamine is made up of, you know, crockery is made up of. Okay. यहाँ पर नंबर उसको निगलेक्ट करो, वीडियो देखो। मेलामाइन बनने का भी इंग्रेडिएंट्स है। तो चिपकाने के लिए बना रहे हो?
समझे क्या किया उसने? हाँ बच्चों, हेलो। हाँ सर। हाँ सर समझ। वो ढांचा था, ढांचे के ऊपर हाँ वो सर। पाउडर रख दिया उसने, मेलामाइन वाला, है ना? तो उसका भी इस शेप में आ गया है वो। हाँ हाँ सर। ओके, गॉट इट? सर वो उन लोग ने स्टार्टिंग को क्या लिया था, वो वाइट वाइट पाउडर जैसा? इसका ही था वो, मेलामाइन का ही था। तो मेलामाइन सर वो स्टार्टिंग में तो मैंने वो डिजाइन था, डिजाइन बनाया मेलामाइन के ऊपर, तो बीच में आया ना वो बनाने के नहीं लिए। सर, एकदम स्टार्टिंग का वीडियो था ना, उसपे हम पहले वो मेजर करते पाउडर, वो एक डब्बे में लेके। हाँ सर वो वाला मैंने पूछा अभी। हाँ, वही वही वो इसी के लिए। it was a liquid which they were applying on that paper, है ना? तो
Mostly it was not related to melamine. I'm also not sure what exactly it was, but it was they were applying on that plastic paper डिजाइन के ऊपर. हाँ सर. एग्जैक्टली नो वो अपने कॉन्टेक्स्ट के बाहर है. हम तो मेलामाइन देखना था हमको. बट यू गॉट ना. आई एम शोइंग यू टुडे मेनी वीडियोस बिकॉज दिस यू विल अंडरस्टैंड ओनली बाय सीइंग वीडियो. मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँ आपको, यस सर. मैं बता सकता हूँ कि सर कैसे. उन्होंने पहले ऐसे पेपर पे वो डिजाइन बनाई, लेकिन जब उन्होंने वो डिश पे से एकदम ऐसे प्रिंट कर दिया तो वो ऐसे डिश ही बन गया था. वो कैसा हुआ, मुझे वो समझा नहीं. वो बराबर उन्होंने मेजरमेंट करके वो शेप लिया था उन्होंने, ऐसा सेमी सर्कुलर काइंड ऑफ थिंग. हाँ, लेकिन जब उसने वो आई थिंक ऐसा ग्लू जैसा कुछ तो लगाया और वो उस मशीन में डाला तो ऐसे एकदम पक्का वो ऐसे चिपक गया था कि खुद ऐसे डिश ही बन गया था. वो कैसा हुआ? तो मशीन पे जाके टेम्परेचर देके वो स्टिक करते हैं उसको, मतलब दे फिक्स इट ऑन इट, फिक्स ऑन इट. लेकिन फिर हम उसको निकाल भी नहीं सकते ना. निकाल नहीं सकते. राइट 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 राइट. तो मशीन के अंदर एग्जैक्टली क्या करते हैं वो पता नहीं, बट वो पूरा जैसे अभी यहाँ पर दिख रहा है डिश पे, ये भी क्या वही वैसा ही कुछ है ना. तो पूरा उसको चिपक जाता है अंदर. वो आई दैट थिंक मीन्स कुछ दे टाइप अप्लाई से सो मच दबा प्रेशर ऑन देते हैं. दैट कि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट नाउ. हाँ करेक्ट. हाँ. दैट्स हाउ इट्स मेड. सर पहले वो हाथ से चिपकाते हैं ना, वो उससे हाँ ग्लू लग रही थी ना वो ब्रश से. करेक्ट करेक्ट. फ्रॉम बाय हैंड दे मेक इट इनटू सर्कुलर. और सर फिर उसके बाद मशीन में जाके वो पूरा चिपक जाता है ना. एग्जैक्टली एग्जैक्टली करेक्ट. ओके. Okay, so let's move ahead now. Spend a lot of time. Plastics as materials of choice. Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircrafts, and spacecrafts too. Right? कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, right? Aircrafts and spacecrafts also. The list is endless if you start counting articles like slippers, furniture, and decoration pieces. Right? So you can use plastic many ways. There is no limit to that. And now, plastic is a material of choice, right? Plastic is non-reactive. Okay, that means not exactly non-reactive, but metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air, right? But plastics do not react with water and air. Do not react में ऐसा नहीं कि completely react करते हैं जैसे आयन की तरह, वैसे नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सटल उसमें रिएक्शन होता है. इसलिए बॉटल सर वाटर का. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा था. ठीक है रुको रुको. अभी आ रहा है आवाज? हाँ सर. मैं क्या बोल रहा था? प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव मेटल, करेक्ट है ना. नॉन रिएक्टिव मतलब ऐसा दिख के नहीं पड़ेगा आपको, जैसे आयन का दिख के पड़ता है ना, वो रेस्ट हो जाता है, दिख के पड़ता है. कॉपर का दिख के पड़ता है, रेस्ट हो रहा है. इसका दिख के पड़ेगा कब? ऐसा प्लास्टिक का नहीं दिख के पड़ेगा, करेक्ट. नॉट एबल टू सी. दैट्स व्हाई दे आर नॉट corroded easily, but it will have a very subtle reaction. करेक्ट ना, बहुत सटली वो रिएक्ट करेगा. मतलब क्या? बॉटल के अंदर पानी भर के रखा आपने बहुत दिनों तक, पानी खराब हो जाएगा, वो वैसा रिएक्ट करेगा. ओके. एंड मेनी टाइम्स लॉट ऑफ केमिकल्स आर यूज्ड. केमिकल्स वहां पर होते हैं, केमिकल जिसको फर्क है. अभी फ्लोर क्लीनर है, वो सब उसको प्लास्टिक में डाल सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे भी हमको टेस्ट नहीं, अपने बॉडी में के अंदर जो डालने वाला उसको मत रखो प्लास्टिक में, और रख रहे हो तो फटाफट उसको इस्तेमाल कर लो, करेक्ट. सो ज़्यादा देर 1 महीने के ऊपर तक का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए हमको प्लास्टिक में जो रखा है. वाटर ऑल्सो इट्स डेंजरस. Even don't keep it for a long time, correct? Okay, we write this down. लिखो इसको फटाफट. सर और प्लास्टिक रॉकेट्स में भी यूज करते हैं ना? रॉकेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करेक्ट. ठीक है, इसको लिख लो फटाफट. राइट दिस डाउन फास्ट.
I'll just be back in a minute. Meanwhile, you write it fast.
हेलो सर। हेलो सर। Okay, so next slide is saying that plastics are poor conductors. So it is told that plastics as materials of choice. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? Plastics are what? Plastics are ना poor conductors पुअर of कंडक्ट poor conductors of heat and electricity. तो कंडक्ट करते हैं क्या? नहीं करेंगे वो. That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic. तो प्लास्टिक का हर जगह पर प्लास्टिक ने, जैसे कोरोना वायरस ने हर जगह अपना ये जमा दिया, उस तरह प्लास्टिक ने हर जगह है ना अपनी छाप छोड़ के बैठा है ये, और कहीं से निकलने को तैयार नहीं है. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के हैंडल में भी इसको इस्तेमाल करते हैं. करेक्ट. जैसे मेरे पास अभी एक्सटेंशन बोर्ड है, एक्सटेंशन बोर्ड में वही है. आपका चार्जर है मोबाइल का, उस चार्जर में भी उसी को इस्तेमाल किया है. करेक्ट ना. आपका लैपटॉप का चार्जर है, उसमें भी है ना, हर जगह है. मेरे पास साइड में बॉटल है, बॉटल के ऊपर का कवरिंग भी प्लास्टिक का ही है. करेक्ट. साइड में मेरे एक स्पीकर है, स्पीकर का ये भी है, प्लास्टिक का ही है. करेक्ट ना. तो हर जगह प्लास्टिक ने अपनी, यस सर। लेकिन प्रॉब्लम है कि कभी भी टूट सकता है. सर करेक्ट. प्रॉब्लम है कि कभी भी टूट सकता सर है. तो मुझे एक डाउट था. हाँ बोलो. सर मुझे एक डाउट था. बोलो ना. सर तो फिर हमें प्लास्टिक यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी है और मतलब गुड इफेक्ट्स भी है. करना चाहिए कि नहीं करना, अभी कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है ना. तुमको अभी इस्त्री करना है, तुम बोले मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल करने ही नहीं वाला, तो करना चाहिए लेकिन एक लिमिट तक करना चाहिए. ओके या राइट. बट नाउ द थिंग इज दैट कि जनरली वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक, इट्स डेंजरस टू द एनवायरनमेंट. बट अभी हर जगह वो आ गया है, इतना आ गया है कि अभी ऑप्शन नहीं अपने पास. आयन में है, फ्रिज के इसमें है. करेक्ट. हर जगह उसने ये बना के रखा है, तो हम करें तो करें क्या अभी. देखिए कोई बोलेगा मुझे फ्रिज इस्तेमाल नहीं सर करना. मेरा जो कनेक्शन है ब्रॉडबैंड का, वो भी प्लास्टिक से ही बना है. हाँ राइट, वो भी प्लास्टिक से बना है. देखो तो बेचारा आदमी करेगा तो क्या अभी, है ना. उसको झपट लिया प्लास्टिक ने. करेक्ट. हाँ सर. मोबाइल का आपका वायर भी उसमें ही है, प्लास्टिक का ही आ रहा है. और मोबाइल का कवर भी प्लास्टिक का ही है. कवर भी प्लास्टिक का ही है. देखो. करेक्ट ना. सर ईयरफोन्स भी. ईयरफोन भी प्लास्टिक के हैं. राइट. सो एवरीथिंग इज नाउ प्लास्टिसाइज्ड. करेक्ट. तो अभी ऑप्शन नहीं है कुछ. बट रिड्यूस, मिनिमाइज एज लेस एज पॉसिबल. करेक्ट. Until and until government takes some strong stand against it, nothing can be done. In between they had taken, but अभी फिर से वो ढीला हो गया. प्लास्टिक बैन वगैरह सब लोग इस्तेमाल करते प्लास्टिक. ओके ठीक है. फ्राइंग पैन ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक्स एंड ये लिख लिया क्या सबने, या स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, जो करना है आपको करो. Sir, in future generation, I think so plastic will more expensive. क्या 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 कब भाई कभी. सर फ्यूचर में प्लास्टिक बहुत एक्सपेंसिव रहेगा ना, हर एक चीज को प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक. लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि वैसे कुछ ऐसे जनरेशन बाद जो भी जनरेशन रहेगी उनमें से पहले से ही माइक्रो प्लास्टिक होगा, क्योंकि हम जो
प्लास्टिक की बोतल में से जो पानी पीते उसमें से प्लास्टिक के आई थिंक एटम्स भी उससे जुड़े के हमारे अंदर आ जाते हैं और उससे हमारे अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक रहेगा। पिछले क्लास में सर ने ये बोला था। करेक्ट। सर पर वो प्लास्टिक से पेट्रोल भी खत्म होता है ना, क्योंकि वो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, तो उससे वो पेट्रोल भी खत्म होगा। राइट। प्लास्टिक से कैसे पेट्रोल खत्म होगा बेटा? सर क्योंकि पेट्रोकेमिकल से बनते हैं ना, प्लास्टिक। पेट्रोलियम ओरिजिन प्लास्टिक। ओके ओके ओके, या करेक्ट। पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोल में बहुत थोड़ा अंतर है बेटा, बहुत। नहीं पर वो क्या? हाँ अच्छा ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी जंग आगे। सर एक्चुअली महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन लग गया है, फिर भी वो सिर्फ वो 10-15 दिन के लिए वो प्लास्टिक बैग, मतलब 10-15 दिन 1-2 महीने के लिए प्लास्टिक बैग स्ट्रिक्टली बैन था, पर अभी वापस वैसे ही शुरू हो गया पहले जैसा। वो पहले 1-2 महीने के लिए पुलिस पकड़ देती, पर अभी कुछ नहीं करती पुलिस। वही चल रहा है। करेक्ट ना? यस सर। तो क्या कर सकते हैं, वो कुछ चीज़ अपने हाथ में नहीं है, हम लोग कितना भी बड़बड़ क्यों ना करें, बंद नहीं होने वाला है वो। ठीक है। सर एक्चुअली प्लास्टिक की जगह और दूसरा यूजफुल प्रोडक्ट कौन सा है जो हम यूज कर सकते हैं? सर अभी तक ऐसा प्रोडक्ट बना ही नहीं है। बनने अगर फ्यूचर में बना तो बहुत अच्छा रहेगा। या करेक्ट, देखते हैं कुछ आ जाए, आप लोग कुछ बना दो। करेक्ट ना? हाँ सर। ठीक है, बट आई वॉज देयर इन वन प्लेस, Bombay. I was there. All of you have heard about this place, Wada? No sir. No sir, what Wada? Yeah. No. So this place is there, Wada. There is a farm called as Govardhaniko village. Okay. Right. So I was like, I had seen this long ago. So वहाँ पर क्या करते हैं लोग? Plastic. There is no tinge of plastic there. You know why? Because प्लास्टिक को जलाते वहां पर, ठीक है, and they will not leave it into atmosphere. मतलब सर, अच्छा वो क्लीन करके बेचते क्या? नहीं, they will burn the plastic there, correct? Or just a minute, they will burn the plastic. What will happen? It will उसका जो गैस फॉर्म बाहर जो निकला है, हाँ, उसका क्या किस में कन्वर्ट होता है फिर वो, है ना, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट? यस सर। इट गेट्स कन्वर्टेड टू गैस, ओके, और फिर वो गैस का फिर बाद में क्या हो जाता है, दे लिक्विफाई दैट गैस, ओके। अभी एटमॉस्फेयर में नहीं गया, वो पाइप में ही अभी सब कुछ, दे लिक्विफाई दैट गैस and that same liquid is used as a fuel to burn some more plastic. Getting my point? Yes sir. बर्न क्यों करते प्लास्टिक, मतलब वो थर्मल से क्यों प्लास्टिक को बर्न करते हैं क्या? हाँ, they burn it in a compressor. नहीं पर वो बर्न क्यों करते, रिसाइकल क्यों नहीं करने देते, मतलब रिसाइकल करने क्यों नहीं देते? बर्न करने से कुछ ये नहीं हो रहा है, नुकसान का ही हो रहा है कुछ पाइप में। सर बट हाउ कैन दे सैटिस्फाई देयर नीड्स? व्हाट काइंड ऑफ नीड्स? वो तो मतलब वो और प्लास्टिक बनाया जाएगा ना, मतलब वो कुछ फायदा नहीं है उसमें, रिसाइकल किया तो कुछ फायदा तो होगा।
हाँ बट वेस्ट प्लास्टिक जो है वो अंदर के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जा रहा है ना कि, और नेचर एनवायरनमेंट को खराब नहीं कर रहा है वो। हाँ तो कुछ फायदे भी नहीं है नुकसान भी नहीं है, तो रिसाइकल करके फायदा कर सकते हैं ना। वही मैं बोल रहा हूँ, देन इट कैन बी यूज एज फ्यूल आल्सो ना, कुछ बर्न करना रहेगा तो हाँ उसको फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूल की तरह। एंड नन ऑफ इट इज बीइंग पुट इन द एनवायरनमेंट आउटसाइड। सर गाड़ी के फुल फ्यूल को यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं लेकिन ये फ्यूल है ना अभी, वो जिसको जलाया वही फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, करेक्ट ना, लाइक दैट। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट वेज पीपल आर ट्राइंग फॉर कमिंग टू दैट पॉइंट। ओके ठीक है, इसको लिख लो फटाफट। सर आप क्विज लेने वाले हो? वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, पहले लिखो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir has not spoken yet. Sorry, spoken. सर म्यूट है ना। Sir, over. Okay, just you wait, you write this down.
सर यस डन। सर हाँ बोलो, हो गया? सर एक्चुअली मतलब बहुत देर से आवाज नहीं, इसलिए मुझे लगा कुछ नेटवर्क इश्यू। देखो अगला वाला अभी, हो गया लेके। प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, तो प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक है बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, बताओ क्या है एग्जैक्टली प्लास्टिक? Sir, it is biodegradable, but it can take a very, very long time. Sir, it's non-biodegradable. या सर क्योंकि ओशंस में जो प्लास्टिक है वो वैसा ही रहता है सालों तक, उसे कुछ होता नहीं है मतलब। करेक्ट, वैसे ही रहता है ना। So which is not easily decomposed by natural processes is termed as non biodegradable, ठीक है? करेक्ट। Sir, but my sir of chemistry told that it is biodegradable, but it will take a lot of years. No sir. up to 1000. ओके फाइन, ठीक है। So like that it happens, you know. So it's not easily decomposed by natural processes, termed as non biodegradable, correct? And decomposed through natural process such as reaction with bacteria is called as biodegradable. Okay. Yeah. So you see here type of सर आप एक स्लाइड पीछे ले सकते हैं क्या? मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। सर हो गया। It's termed as what? Non biodegradable. Okay. Plastics and the environment, you know. So you see the type of waste it takes. सबसे ज्यादा साल किसको लग रहे हैं? हाँ, तो प्लास्टिक किस कैटेगरी में आ रहा है? Non-biodegradable. Plastic is coming under this of non biodegradable. Okay. Sir, but it is just decomposing. It is, but it would take a very very long time, correct ना? आप जिंदा भी नहीं रहोगे तब तक देखने के लिए और डिकम्पोज हो रहा है। Yes, sir, it's correct. मतलब सर प्लास्टिक अभी 200 जन्म बीत जाएंगे पर फिर भी नहीं होगा। हाँ, तो पहला प्लास्टिक आया था 1862 में, अब तक वो कुछ का खत्म नहीं हुआ है। अब तक तो ऐसे तो लाखों करोड़ों करोड़ों प्लास्टिक आ गए, वो कब जाएंगे पता नहीं। सर तो फिर हमने ऐसे कैसे एस्टिमेट कर लिया कि मतलब प्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल है, बट इट विल टेक वेरी लॉन्ग इयर्स। नहीं पता चलता है ना, वी कैन अंडरस्टैंड दैट स्लो, थोड़ा धीरे 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 होता है। Okay, That we can assure that it would happen very very lessly, correct ना? बहुत कम स्पीड से होगा जनरली। सर हाउ आर वुलन क्लोथ्स बायोडिग्रेडेबल मतलब? क्या क्या? वुलन क्लॉथ्स? हाँ सर। कौन सा वुलन क्लॉथ्स? हाँ वुलन क्लोथ्स। वुल तो क्या है, नेचुरल मटेरियल ना, उसका क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो डिकम्पोज कैसा होगा मतलब? हो जाएगा वो। सर बैक्टीरिया तो वुलन खा तो नहीं सकती ना? कर सकते हो वो, इट कैन एक्चुअली एनीथिंग, यानी जैसे प्लास्टिक भी होता है वो थोड़ा थोड़ा बहुत, करेक्ट? तो इफ यू पुट इट अंडर, एक जगह कहीं जमीन पे पड़ा रहा वो चीज बहुत दिनों तक, आप देखा होगा जो चीज कपड़ा समझो पड़ा हुआ है कहीं जमीन में, फट जाता है थोड़ी देर के बाद, करेक्ट ना? ऑटोमेटिकली विल सी, राइट? So if it's put underground, it will slowly happen. Something will happen like that in that thing, right? ना? ठीक है, हो दे जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसका। क्लियर? तो या
So now this is last topic, plastics and the environment. So since plastic takes several years to decompose, it's not environment friendly. It causes environmental pollution. Okay, so you take screenshot of this. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not completely burn easily. In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. ठीक है, तो कुछ मतलब नहीं जलाने का. Plastic takes several years to decompose. It's not environment friendly. It causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and does not get completely burned easily. Okay. Now, what is saying that plastic environment? इसको लिखना है कि आपको क्या कर रहे हो इसका? हाँ सर, स्क्रीनशॉट लेते हैं. ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर. हाँ सर, लिया. Yeah, now you're saying that avoid the use of plastics as far as possible. Make use of bags made of cotton or jute when you go for shopping. The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. It is better to recycle the plastic waste. Most of the thermoplastics can be recycled. Okay. Sir, how can we recycle the plastic bag? Can't use it again. We Plastic- can use it in decoration purposes. सर, प्लास्टिक बैग कैसे डेकोरेशन में यूज करेंगे मतलब? नहीं, प्लास्टिक बैग को तो इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार. And प्लास्टिक sir, we can you can use ना प्लास्टिक again and again. करेक्ट ना? सर, लेकिन वो डेकोरेशन या इसमें यूज तो नहीं होगा क्योंकि वो कैसा लगेगा डेकोरेशन में? हाँ, मत करो फिर इस्तेमाल डेकोरेशन में. but sir, we can create model also from that plastic. हाँ सर. और Best डेकोरेशन out में of it. ऐसे यूज करना जैसे उसको हम किसी भी ऐसा पेंट करने मतलब उसको काटने का एक ऐसे स्क्वायर में, फिर उस पे ऐसा पेंटिंग कुछ भी ऐसा डिजाइन बनाने की और फिर उसको ऐसा डायमंड शेप में हैंग कर. सर एक्चुअली कार्डबोर्ड भी तो हम वैसे ही यूज करते हैं ना, कार बना के, कार या फिर कुछ अट्रैक्टिव चीजें बना के, वैसे ही Correct, प्लास्टिक का कर सकते हैं. राइट, यस. ओके. सो यू कैन मेक वेरियस यूजेस. तो डेकोरेशन में भी लाइट में लगाते हैं ना हम लोग, लाइट के ऊपर ये लगा देते, प्लास्टिक लगा देते हैं. तो ये चश्मे भी प्लास्टिक के रहते, कांच भी आपका प्लास्टिक का ही रहेगा. चश्मा जिसको चश्मा लगाए, कौन अभी ग्लास कौन इस्तेमाल करता है ग्लास, है कि नहीं? फाइबर इस्तेमाल करते सब लोग, बराबर ना? यहाँ लग ये इसका हो गया, कर दिया आपने इसका? यस सर. So always remember these 4 R's. Responsibility, remember the 4 R's. क्या है? Reduce, reuse, recycle and recover. Correct. Okay. Getting my point. हाँ सर. यस सर. यस और सर. वो इन मतलब वर्ड के 4 R's रहते हैं वैसे, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल और रिफ्यूज. Correct. सर, आप वो पहली वाली स्लाइड निकाल सकते क्या? सर एक्चुअली ये भी वही है, पर इसमें रिकवर है और रिप्रोड्यूस. सर ओके. Correct. सर उनका मीनिंग अलग है ना, किसका? रिकवर एंड रिप्रोड्यूस. Recover and reproduce. यस सर. Reproduce तो रिसाइकल में आता है ना? करेक्ट ना? यस.
ओके फाइन, दैट्स हाउ। तो उसका मतलब क्या फिर? ठीक है, ये कर लिया आपने, इसका निकालो हाँ सर। स्क्रीनशॉट। अभी रिकवर क्या होता है, कौन बताएगा? सर क्या? व्हाट इज रिकवर? रिकवर मतलब आपने जो ये सब, बोलोगे उसे अलग अलग फॉर्म्स में बनाने की ऐसा। हाँ मतलब आपने उसको रिड्यूस कर दिया, रीयूज कर दिया और रिसाइकल सब कुछ करके हो गया आपका। और ये सब करने के बाद भी क्या हो रहा है, ये सब करने के बाद भी है ना कुछ बच जाता है मान लो, तो क्या करो, है ना, ट्राई टू मेक सम एनर्जी फ्रॉम दैट वेस्ट, लाइक दैट, करेक्ट? तो कुछ एनर्जी उसमें से तैयार कर सकते हो, ऐसा रिकवरी, दैट्स व्हाट। कुछ बचने के बाद भी जो बच जाता है उसका तो कुछ अभी यूटिलाइजेशन करो उसका, गेटिंग पॉइंट, लाइक दैट। यस सर। ठीक है, ये इसका निकालना स्क्रीनशॉट। सर कैन यू टेक दैट स्लाइड? वेयर? सर अभी अभी जो आपने स्लाइड दिखाई थी। ये वाला? यस सर। डन। डन। स्क्रीन क्या हुआ? स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट इज टेकन, वेरी गुड। इसका ले ले स्क्रीनशॉट। हाँ सर। सर आप वो आर वाली स्लाइड दिखाओगे क्या? ये तो आया आर वाली स्लाइड। नहीं, जहाँ वो सब लिखा हुआ था वो वाली। ये वाला? उस पर लॉग इन किया क्या आपने? सर आपने दोनों लिंक सेम ही है? हाँ, कुछ लोग अभी लेट आए इसलिए। सर रुको। कोई नहीं आया अब तक? सर मैं आई ना अश्विनी। सर 1 मिनट में आ रहा हूँ। सर मैंने भी ज्वाइन किया है। तो आप लिंक भेज सकते हो क्या वापस? ठीक है। सर मैं आ रहा हूँ। सर मैं आ गई। श्रीराम बेटा समझ रहा है तुमको? नो सर। क्या नहीं समझ रहा है तुमको? सर आपने अभी ये लिंक किसकी भेजी वो नहीं समझा। उस पर लॉग इन करो, लॉग इन करो, उसको खोलो उसको। खोला क्या आपने? सर अभी 9 आ गए ना। उसमें खोलो, लॉग इन करो बस। यू आर अंडर 16 करके डालो और आगे का आपका डिटेल थोड़ा भर दो उसमें, ठीक है श्रीराम? ओके, किधर है और बाकी 5 लोग किधर है? सर एक सेकंड आ रहा हूँ। सर जस्ट अब 2 मिनट रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। टाइम नहीं है अभी। सर एक ही सेकंड, एक ही सेकंड।
हाँ सर आ गया। ओके 3 लोग कौन बाकी है? हाँ सर मैं भी आ गया। 3 लोग बाकी है कोई तो अभी? सर आपको मैं दिख रहा हूँ क्या? नहीं मैं दिख रहा हूँ। मुझे सिर्फ 12 नंबर ये दिख रहा है बस, और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। श्रीराम आ गए क्या? श्रीराम श्रीराम सर आप चालू सर कर। यस सर आ रहा हूँ। ठीक है तो आपको मैं अभी शेयर कर देता आप हूँ ये। चालू कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है तो मैं चालू कर रहा हूँ। ओके मैंने स्क्रीन पे भी शेयर किया, जिसको नहीं आ रहा लॉगिन वो इस पे देख सकता है स्क्रीन पे। ठीक है ओके 3 2 1 अभी आएगा आगे। तो बच्चों हर एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम जरूरी है ना? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने टाइम रखा है, तो ऐसा मत सोचो कि अरे इतना क्यों टाइम लग रहा है ऐसा। सर कुछ तो चुका है सर इसमें। किसमें चुका है? ये क्वेश्चन में बोथ नहीं है। हाँ ठीक है वो हो गया, गलती से हो गया। यहाँ लीव इट 0% आया ना, किसी को नहीं मिला वो, छोड़ दो। सर स्पेलिंग चूका है जो आंसर है उसका। छोड़ो हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? सर बोलो। सर ये लॉगिन पापा का है, तो फिर जब पापा आएंगे तब अगर मैंने लॉगिन किया तो ये ओपन होगा क्या? नहीं
आप पिछली स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है, उस पर अभी सॉल्व कर दो उसको। ठीक है, सर कैसे? मैं स्क्रीन शेयर किया है ना मैंने अपना जूम पे मैंने स्क्रीन शेयर किया है, उसमें देखो। सर की तरफ से आवाज आ रहा है, उसे म्यूट कर दो ना। कुछ आवाज आ रहा है? बैकग्राउंड नॉइस। सर मैंने गलती से गलत मार्क कर दिया। सर पिछले क्वेश्चन मैंने करेक्ट किया तो वो इनकरेक्ट आया। वैसा नहीं होगा।
मैंने गलत डाल दिया। सर ये वोलाटाइल लिक्विड्स का आता है? जो उड़ते, which can fly. सर मेरा गलत आ गया वापस। आदि फर्स्ट आने वाला है अभी। सर यहाँ जो आर्किलिक है वो पेंट है ना? हाँ, right. Acrylic is a material. Sir, it is a artificial wool, no? Yeah, so So it is not a paint. हाँ वही पेंट उससे बनता है सब। Acrylic paints उससे बनते हैं? Okay, good. Okay, so good. So Anand Shah scored very nicely. He's the topper. Right, and Thank you, Asmi, followed by Asmi and Adi. चारुल तुम्हारा नाम तो कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है। Okay, so thank you very much and all the best. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye. Have a nice